Hello everyone. I'm again back with a new chapter, and the chapter is forces and laws of motion. In the last chapter, we had understood what is motion. So we had said that motion is nothing but the change of the position of any object with the time. There was a hidden fact behind this, that it had to be with respect to the reference point. Okay, we understood the effect. So what was the effect? Effect was motion. हमने ये तो पढ़ा कि कोई अपनी जगह चेंज कर रहा है, राम लखनऊ से कानपुर जा रहा है, ईंट को मैंने धक्का मारा तो ईंट आगे बढ़ जा रही है, मतलब ईंट आगे बढ़ रही है, रादर कुत्ता यहां से वहां जा रहा है, कार यहां से लखनऊ से बनारस जा रही है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमने ये जाना कि कुछ तो हो रहा है, चेंज इन पोजीशन इज हैपनिंग विद टाइम, बट वी डिड नॉट स्टडी व्हाट इज द कॉज ऑफ इट। हमने इसका कारण अभी नहीं पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम जरा मरा हम कॉज पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। साइंस का यही तरीका है, एटलीस्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, वी अंडरस्टैंड एंड रीड द इफेक्ट फर्स्ट एंड देन कॉज, because cause is more of the analysis which we develop the ability with time. Okay, so what we have been observing, that look, till the time of Galileo and Isaac Newton, there was a tendency that if there is anything lying, let us say there was a ball lying, बॉल रखिए, okay, कोई आया और किसी ने इस पे हिट किया, क्या क्या हिट किया, लात मार दी बाय लेग। And what did we observe? We observed that after some time t, ये जरा सा मूव किया, if this hit is powerful enough to move it, कभी कभी क्या है, बहुत ही small quantity hit पे तो ये हिलेगा भी नहीं। आपने जरा सा क्या किया, ऐसा किया, ये ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, इसमें आपने बस ये जरा सा क्या, नहीं हिला ना, बढ़ाया तो हिल गया। ऐसे ही इस पे भी होता है। तो आपने फिर जब एक इनफ क्वांटिटी, एक इनफ हिट वाज गिवन, देन इट मूव्ड। उसके बाद भी उतना भी मूवमेंट कुछ देर बाद, चाहे आप कितना भी तेज उसे हिट कर लें, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द हिट और द टोटल फोर्स, it will stop with the time. So there was a theory. Initially the theory was that rest is a natural tendency of all objects. Initially, आज से बहुत साल पहले, there was a tendency and there was a theory that the rest is the natural tendency of the object. हर object rest में रहना पसंद करता है, हिलना डुलना पसंद नहीं करेगा, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से दो महान वैज्ञानिक आए। There were two people.
there were two people who came into the physics, and one was the Isaac Newton, and the second was the Galilei, जो भी इनका नाम था। They developed a new theory। ये कहानी आपने सभी ने सुनी होगी कि Newton was sitting under a tree and the apple was falling behind, and then he started thinking that why is it that everything is being attracted by earth, or everything is going towards earth? Why didn't it happen that it flies off, it flies upwards? Okay, and further on, after a lot of experiments and all, we came through that what actually the force is. Okay, so if we talk about force, अपना जो नेचुरल लाइफ है, अपना जो आम जीवन जिसे हम कहते हैं डेली लाइफ, how do we encounter with the force? How do we encounter with the force? We say that there is a push, there is a pull, or there is a hit. Okay, nobody has seen the force. Have you ever tasted the force? Have you ever seen the force? But we say that there is some force applied based on the motion, because something has been bent, something has been pushed away, something has been pulled inside. Then we say that there has been some force, because force is the cause. Okay, so in our daily life, the forces are being identified in these three ways. What? Push. There was a brick on the table, or you say the book on the table. Book was at rest. Nobody was doing anything. अचानक से क्या हुआ कि टेबल के इस किनारे पे इधर विराट बैठे थे और इधर अभय बैठे थे। ओके, सो विराट जो कि आलसी है, लेथार्जिक है, उसने अभय से बोला कि यार फोर्थ चैप्टर पढ़ना है। सो अभय सेड बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई डोंट यू टेक इट? विराट से व्हाई डजंट इट कम टू मी? आई हैव सेड इट। मैं आपको तो कह देता हूं कि मेरे पास आ जाओ, तो आप आ जाते हो। अभी ऐसा क्यों नहीं, मैं बुक को कह दूं? अब मैं बोला भाई बुक तो जो है बात सुनता नहीं है। किस चीज की बात सुनता है? बुक जो है ना ताकत की बात सुनता है। तो मैं क्या करूं? ताकत लगाओ। सो व्हाट डिड विराट डू? विराट kept his hand and took this away here. So what did he do to bring the book here? Actually, Abhay pulled the book. Okay. After half an hour, when Virat was done with the studying, then Abhay told that I need it now. So what did he do? This time he, to make the book here, this time he pushed. Okay. So the push or pull has given a change in the position. What is change in the position? That is the effect. What is the cause? This push or pull. When you are playing in the ground, let us say in a football match, okay, this time you are not pushing or pulling, this time you are just hitting. So someone's
hit also, hit also is an evidence of the force. Okay, so force is nothing but push, pull or hit. This is how we encounter with force in our daily life. What happens when a car comes and strikes with a bike? Okay, what happens? This hit this and this hit this. Both of them impact some forces on each other, and the geography of that, the mouth of the car and the bike gets distorted, मुंह बैंड हो जाता है. आप शक्ल देख के बोल सकते हैं किसी ने इसको हिट कर दिया, चाहे हथौड़े से हिट किया, चाहे कार ने हिट किया, चाहे किसी ने भी हिट किया. So this is how we feel the force. Okay. अब in our general daily life, हम जितने भी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या वर्बली जितने भी फोर्स के बारे में बात करते हैं विजिबली, हम कहते हैं कि एक ने दूसरे को छुआ, वेदर पुश और पुल और हिट. All of these are happening due to the contact of two. अब ये two जो है ना, ये कुछ भी हो सकता है. Two can be a surfaces, objects, living और नॉन लिविंग. अच्छा, एक और बात, कैन ओनली लिविंग बीइंग एक्सर्ट द फोर्स? कैन ओनली लिविंग बीइंग एक्सर्ट फोर्स? कैन ओनली लिविंग बीइंग एक्सर्ट द फोर्स? नो, a moving car also exerts the force. Okay, a car also exerts the force. What? Magnet. There are two magnets. Let us say this is north, south, north, south. ये नॉर्थ है, ये भी इसका भी नॉर्थ है. दोनों के दोनों बिना किसी कांटेक्ट में आए फोर्स लगा देते हैं ना दूसरे के ऊपर. डू वी नीड टू पुट देम इन कांटेक्ट? इवन नॉर्थ तो आपस में कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे. देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, है ना. देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स. ओके, without contact. धक्का मारता है ना दूसरे को, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है. एक और बात, ये ना स्प्रिंग को आप ऐसे खींचते थे वैसे और छोड़ दो, झनझना के मोशन में आ जाती है ना. मोशन का कॉज क्या है? फोर्स है. जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा ही होगा. ठीक है. दूसरी बात, न्यूटन साहब ने क्या कहा? क्या सिर्फ कांटेक्ट से ही फोर्स हो सकते हैं क्या? मैंने किसी को छुआ, एक सरफेस में, क्या ऐसे ही फोर्सेस होते हैं क्या? और कोई तरीका फोर्स का नहीं है क्या? आपको जरा इस बारे में सोचना होगा. दो इट इज नॉट इन योर चैप्टर, दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर syllabus, but we will take a small exposure to it. धरती, ये जो न्यूटन साहब ने कहा, सेब नीचे की तरफ दिखता है,
तरफ के गिर जाएगा। So what do we concluded? That the earth attracts everything. सुना है ना आपने? Towards each, towards its. सुना है ना आपने कि धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप अभी जमीन यहाँ से कूद जाओ 7वीं मंजिल से, तो आप नीचे ही गिरोगे, ऊपर नहीं जाते। सेब भी गिरता है, कागज भी गिरता है, एवरीथिंग। ये कौन सा फोर्स है? देयर इज नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट इन ऑब्जेक्ट्स। कोई कांटेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट्स में? इज देयर एनी कांटेक्ट इन द ऑब्जेक्ट? नो, देयर इज नो कांटेक्ट इन द ऑब्जेक्ट। मैंने अभी भी आपको मैग्नेट्स का एग्जांपल दिया था, मैग्नेट्स का एग्जांपल दिया था। नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, नो कांटेक्ट। ओके, न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बिना किसी कांटेक्ट में आए एक दूसरे को अट्रैक्ट, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। शेल्स में घूमते रहते हैं। अर्थ, सन चक्कर मारती रहती है। एनी कांटेक्ट? नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज with your own experiences of the forces. Forces can be applied on any of the object by the contact and without the contact also. I told you charges, Q charge यहाँ होता है, Q charge यहाँ होता है। पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। There is a contact, no contact. Okay. So forces को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? ये वैसे तो आप आगे जाके पढ़ते, but I thought of giving you a small exposure just here, so that you are clear what the forces are. So forces को actually हम इस तरह से बांटते हैं। जो forces की स्टडी है, कई सारी इसमें होती है। पहला हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ओके। हम कहते हैं ग्रेविटेशनल, जो धरती सबके ऊपर लगाती है। आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि एवरीथिंग विच हैज अ मास attracts attraction force on anybody or anything which has a mass. दो बॉडीज इनके पास कुछ मास है, एक दूसरे को एक पर्टिकुलर रिलेशन से, एक पर्टिकुलर फोर्स से, जो कि उसके मल्टीप्लिकेशन के, मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के डिस्प्रोपोर्शनल होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस and then but in ninth standard और 10th स्टैंडर्ड हम ज्यादा क्या पढ़ेंगे? हम बेसिकली ज्यादा कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने उस पर धक्का लगाया, अपनी हथेली से उस पे, अपनी हथेली से इस पे, ठीक है। कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात करने में एक और चीज जो है, पहली बात तो कांटेक्ट फोर्सेस जो दो सरफेसेस हैं उनके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, किसने किस पे कितना लगाया इस पे डिपेंड करेगा। एक और बात पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही। पहली बात तो कि जरा सा लगाया नहीं हिला, जरा से ज्यादा लगाओगे ये हिल जाएगा।
उतना ही फोर्स अगर मैं यहां लगाऊं तो टॉपल कर जाएगा। उतना ही फोर्स यहां लगाया तो टॉपल नहीं किया, लेकिन अगर यहां लगाऊंगा तो टॉपल कर जाएगा। और लगाता रहूंगा तो अपनी जगह पे यूं ही भी घूम सकता है। खैर, घूम सकता है। So it was just to make sure that this powder is the effect of the force and the point of application. पहले नहीं गिर रहा था ना पाउडर, बाद में गिर गया, टी शर्ट खराब कर दी। ओके, so the contact force depends on point of application also. Though I have covered a lot of things which are not a prospectus of the ninth, but just to clear it to you, just to have a better understanding of the forces, I have taken all these things. Please go through NCERT, read it carefully, then you again go through this lecture, and we'll further discuss what is force and what is laws of motion. Thank you very much for being with me. Stay on and tune to Prerna Tutorials. Thank you.